صبح سویرے نماز کے بعد ناشتے سے فارغ ہو کر میں اور کمانڈر عبدالحق جانے کے لیے تیار تھے۔ سڑک تک جانے میں ہمیں 2-3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ وہاں سے ہمیں ارگون اور ساروبی تک گاڑی مل گئی تھی۔ وہ گاڑی مجاہدین ہی کی تھی۔ آگے کا راستہ پیدل طے کرتے ہوئے ہم پکتیکا پہنچے، کیونکہ میرا ارادہ کچھ خریداری کرنے کا تھا۔ قریباً 2 ہفتے پہلے میں چچا شمریز کے گھر تحائف بھجوا چکا تھا، لیکن خود اسی راستے سے جانے کا ارادہ کیا تو خالی ہاتھ جانا مناسب نہ لگا۔ رات ہم نے شہر میں گزارنے کی بجائے آگے جانے کو ترجیح دی تھی۔ صبح کے قریب ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے۔ ناشتہ وغیرہ کر کے ہم آرام کرنے لیٹ گئے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر میں جانے کے لیے تیار تھا۔ کمانڈر عبدالحق نے بھی چھٹی جانا تھا، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ چل پڑا۔ جن رستوں کو میں نے پچھلی بار بچا کر بھاگتے ہوئے طے کیا تھا، ان رستوں کو پیدل عبور کرتے ہوئے اچھا لگا۔ عشاء کے قریب ہم غزنی خیل گاؤں کے مضافات سے گزر رہے تھے۔ رات گزارنے کے لیے وہاں کے سردار کی بیٹھک ایک بہترین چناؤ تھا۔ میں کمانڈر عبدالحق کو ساتھ لے کر اسی جانب بڑھ گیا۔ سیلاب خان مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی ہمارے لیے خصوصی کھانا تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ کمانڈر رشید جان، الفت بادشاہ، مشر خان، نوشاد گل، گلریز وغیرہ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان سے رخصت ہونے کے بعد میرا شلوبر قبیلے سے جو ٹاکرا ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں شلوبروں کے زخمی اور قتل ہونے والے افراد کی خبر ان تک بھی پہنچی تھی۔ میرے ساتھ ان کے رویے میں پہلے سے زیادہ عقیدت جھلک رہی تھی۔ میں نے سردار سیلاب کو بتایا کہ ان کے قبیلے میں کوئی غدار موجود ہے جس نے میرے بارے میں شلوبروں کو اطلاع فراہم کی تھی۔ سردار سیلاب خان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، 1 نہیں 2 تھے۔ دونوں کے سر کاٹ کر شلوبر قبیلے کو بھجوا دیے ہیں۔ البتہ ان کے دھڑ یہیں دفن کرنے پڑے، اور سر کے بغیر جنازہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس مسئلے کے بارے میں چونکہ ہمیں کوئی خاص معلومات نہیں تھی، اس لیے ہم جنازہ نہیں پڑھ سکے۔ میں نے کہا، دھڑ کے بغیر جنازہ ہوتا ہے یا نہیں، یقیناً یہ مسئلہ شلوبروں کو بھی معلوم نہیں ہوگا، اور انہوں نے بھی یہی حل سوچا ہوگا جو آپ لوگوں نے سوچا ہے۔ کمانڈر عبدالحق نے لقمہ دیا۔ غداروں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے کہ انہیں نہ تو اپنا تسلیم کرتے ہیں اور نہ غیر ہی اپنانے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہاوت ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اسی گپ شپ کے دوران کھانا تیار ہو گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بھی سیلاب خان اور باقیوں نے ہمیں اتنی جلدی سونے نہیں دیا تھا۔ ان کی شلوبروں کے ساتھ ابھی تک صلح نہیں ہوئی تھی۔ اس ضمن میں 2-3 جرگے ہو چکے تھے۔ اب آخری اور حتمی جرگہ 1 ہفتے بعد ہونا تھا۔ میرے اپنے اتنے مسائل تھے کہ میں دوسروں کے معاملات کی جانب توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کی لڑکی کو پھانسی دیتے، اس کا سر قلم کرتے، یا اس کے علاوہ ان کا کوئی اور منصوبہ ہوتا، مجھے اس بارے میں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے ان کی لڑائی کے بارے میں اجمالاً پوچھ کر میں نے گفتگو کا رخ بدل دیا تھا۔ رات کو دیر سے سونے کے باوجود ہم صبح کی نماز اور ناشتے سے فارغ ہو کر جانے کے لیے تیار تھے۔ سردار سیلاب خان نے اپنے قبیلے کے درجن بھر آدمی میری حفاظت کے پیش نظر میرے ساتھ روانہ کرنے چاہے، مگر میں نے منع کر دیا۔ یوں بھی کمانڈر عبدالحق شلوبر قبیلے کے ساتھ میری صلح کی بات کر چکا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ میری واپسی سے بھی ناواقف تھے، تو مجھے نقصان پہنچانے کا کیا سوچتے، اور اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ میرے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا مطلب بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف تھا۔ مجاہدین اتنے بھی کمزور نہیں تھے کہ ایک گاؤں پر قابو نہ پا سکتے۔ آتے وقت رستے پر برف پڑی تھی، جبکہ اب اپریل کا اختتام تھا۔ برف بالکل ختم ہو گئی تھی۔ سردی کی شدت میں پہلے جتنا زور باقی نہیں تھا۔ سپہر ڈھلے ہم گلگارے کے مکان پر پہنچ گئے تھے۔ میں نے ان کے لیے خریدے ہوئے تحفے ان کے حوالے کیے۔ وہ رات ان کے گھر گزاری، چچا شمریز کو افغانستان میں اپنی آپ بیتی سنائی، اور اگلے روز میں کمانڈر عبدالحق کے ساتھ اس رستے پر دوبارہ گامزن ہو گیا کہ جس رستے پر میں نے برف کا عذاب جھیلا تھا۔ اسے میں نے وہ سارا واقعہ بتایا، اور ساتھ ہی یہ کہ گلگارے نے کس طرح میری جان بچائی تھی۔ وہ بے ساختہ کہہ اٹھا، واقعی ایسی لڑکی عزت اور احترام کے قابل ہے۔ دوپہر کو ایک چشمے کے کنارے بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا۔ کھانے اور گرم قہوے سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور دوبارہ کمر باندھ لی، اور پھر رات کو بھی رکے بغیر چلتے رہے۔ صبح کی اذان کے وقت ہم انگور اڈے پہنچ گئے تھے۔ کمانڈر نصر اللہ خوجل خیل نے ہمیں بڑے خلوص سے خوش آمدید کہا تھا۔ ساری رات چلنے کی وجہ سے ہم تھکن محسوس کر رہے تھے، لیکن ہمارا ارادہ آرام کرنے کا بالکل نہیں تھا۔ چچا نصر اللہ کے پاس ناشتہ کر کے ہم گپ شپ کرنے لگے۔ ان کے پاس ہمارے لیے کوئی خوشخبری موجود نہیں تھی۔ کمانڈر اسلام کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ پلوشہ اور سردار کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے آیا۔ اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ البتہ کمانڈر عبدالحق نے مجھے زبردستی چلنے کا کہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایک بار اپنے سینئر سے ملاقات کروں، مجھ پر لگے الزامات کے ثبوت ملنے کے بعد میرے لیے کیا طے کیا جانا ہے، اس کا سامنا کر لوں، اس کے بعد میں آرام سے پلوشہ کو تلاش کر سکتا ہوں۔ مجھے اس کی بات ماننا پڑی، اور ہم چچا نصر اللہ سے اجازت لے کر ویگن اڈے کی طرف بڑھ گئے۔ ان سے لی ہوئی کلاشنکوف میں نے ان کے پاس ہی چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ میں اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ کر کمانڈر عبدالحق مجھ سے الوداع ہوتے وقت عجیب سے لہجے میں بولا، ذیشان بھائی مجھے معاف کر دینا۔ میرے چہرے پر حیرانی بھری مسکراہٹ ابھری۔ کیا مطلب؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولا، ویسے ہی بس
दानिस्ता या नादानिस्तगी में कोई गलती हो जाती है ना। मैं उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, वो तो हर किसी से हो जाती है, शायद मुझसे भी हुई हो। वैगन अड्डे से उसने पेशावर की गाड़ी पकड़ी और मैं रावलपिंडी रवाना हो गया। मुझे मालूम था कि घर जाकर मैंने फंस जाना है और घर वालों ने पलवशा के बारे में पूछ पूछ कर मेरे दिमाग की लस्सी बनानी है, इसलिए बेहतर यही था कि मैं पहले औरंगजेब साहब से मुलाकात करता। डेरा इस्माइल खान से रावलपिंडी तक मैं अपनी नींद पूरी करता रहा। सुबह की अजान के वक्त मैं पीर वधाई मोड़ पर उतर रहा था। मेरा मोबाइल फोन वगैरह चूंकि औरंगजेब साहब के पास ही रह गया था, इसलिए मुझे एक दुकानदार से फोन मांगकर औरंगजेब साहब को कॉल करना पड़ी। वो सोया हुआ था। उसकी नींद में डूबी हुई हेलो मेरे कानों में गूंजी। मैंने फौरन कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ और इस वक्त पीर वधाई मोड़ पर खड़ा हूँ। उनकी आवाज से गुनूदगी गायब हो गई। वालेकुम अस्सलाम, मुझे 20 मिनट लगेंगे। मैं वहीं पर उनका इंतजार करने लगा। वो बताए गए वक्त से 2 मिनट पहले पहुंच गए थे। पुरतपाक अंदाज में मुझसे छाती मिलाते हुए उन्होंने मेरी पीठ थपकी और मैं उनके साथ रवाना हो गया। कार आगे बढ़ाते ही उन्होंने सवाल किया, वैसे वो सबूत तुम्हें खुद लाने चाहिए थे। मैंने कहा, बस सर, एक छोटे से काम के लिए वहीं रह गया था, इसलिए किसी और के हाथ भिजवाने पड़े। वो मुस्कुराए, तुम्हारा छोटा काम किसी के सर में गोली उतारना ही हो सकता है। मेरे लबों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई, कुछ ऐसा ही समझे सर। वो बोला, तुम्हारी कहानी तो तफसील से सुनूंगा, फिलहाल ये सुन लो कि तुम पर लगे इल्जामात तो साफ हो गए हैं, लेकिन मुझे बेहोश करके तुमने भागने की जो गलती की है उसका मुकदमा अभी तक बाकी है। ये कहते हुए वो खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं तुर्की बतुर्की बोला, एक फील्ड एजेंट से ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं सर। वो बोला, हाँ, मगर सजा का सामना तो करना पड़ता है ना। उन्होंने कार अपने घर की तरफ मोड़ दी। नाश्ता करवा कर उन्होंने मुझे आराम का मशवरा दिया। आरामदेह बिस्तर पाते ही मैं सो गया। मुसलसल 2 रातों से मुझे बिस्तर नसीब नहीं हुआ था। दोपहर के 11 बजे जगाकर उन्होंने मुझे तैयार होने का हुक्म दिया। मेरे नाप की वर्दी और बूटों वगैरह का बंदोबस्त कर दिया था। 12 बजे मुझे कर्नल अहमद के सामने पेश किया गया। कर्नल साहब को सारी बात औरंगजेब साहब तफसील से बता चुके थे। मेरे साबिका कारनामों को देखते हुए और मेरी मजबूरी को मद्देनजर रखकर उन्होंने मुझे खाली वार्निंग देने पर इक्तफा किया। उसके साथ ही उन्होंने मुझे वापस अपनी यूनिट में भेजने का हुक्म भी दे दिया। इतनी आसानी से जान छूटने पर मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। अलबत्ता मेरी अपनी यूनिट के कर्नल साहब तक भी ये तमाम बातें तहरीरी सूरत में भिजवा दी गई थी। नामालूम उनका क्या फैसला होता, और मुझे लग भी यही रहा था कि कर्नल अहमद ने मेरी सजा वगैरह का तयन मेरी यूनिट के कर्नल साहब की सवाबदीद पर छोड़ दिया है। आर्मी में एक यूनिट से दूसरी यूनिट में तब्दीली पर चंद दिन की छुट्टी जरूर मिलती है, जिसे ज्वाइनिंग टाइम कहते हैं। कर्नल साहब के दफ्तर से बाहर आते ही मैं औरंगजेब साहब को मुखातिब हुआ। सर, मूव ऑर्डर पर जितनी ज्यादा छुट्टी दे सकते हैं दे देना। वो मुस्तफसिर हुए, दे दूंगा, मगर क्या करना है लंबी छुट्टी का। मैं साफ गोई से बोला, सर, मेरी बीवी पलवशा का अब तक पता नहीं चला, उसकी तलाश में जाना है। यूं भी औरंगजेब के साथ मेरा ताल्लुक सीनियर जूनियर के अलावा भी कुछ बन चुका था, इसलिए मैं उनसे कोई बात खुफिया नहीं रखना चाहता था। उनके चेहरे पर हैरानी उभरी। क्या? मैंने कहा, जी सर, सरदार खान और पलवशा भी मेरी बेगुनाही के सबूत ढूंढने गए थे। शायद सरदार खान को तो भगोड़ा जाहिर कर दिया गया हो, उसकी छुट्टी तो कब की खत्म हो चुकी होगी। औरंगजेब साहब मेरी बात का जवाब दिए बगैर मुझे साथ लेकर अपने दफ्तर में दाखिल हुए। मुझे बैठने का इशारा करके उन्होंने इंटरकॉम उठाकर क्लर्क को मेरा यूनिट वापसी का मूव ऑर्डर तैयार करने का हुक्म दिया और साथ ही ये बता दिया कि ज्वाइनिंग टाइम 29 दिन भरे। वो ज्यादा से ज्यादा इतनी ही छुट्टी दे सकते थे। रिसीवर रखकर उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया जिसमें मेरा सर्विस कार्ड, शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन वगैरह मौजूद थे। ये वो सामान था जो मेरी गिरफ्तारी के वक्त यहाँ जमा किया गया था। शुक्रिया कहकर मैंने सामान वर्दी की जेबों में मुंतकिल कर दिया। वो गंभीर लहजे में बोले, सरदार अपने घर में है, हादसे में उसकी दाईं टांग टूट गई थी, उस हादसे की वजह से उसे भी वापस यूनिट भेज दिया गया है। मेरे मुंह से निकला, पलवशा। मुझे अपनी आवाज जैसे खाई से आती हुई महसूस हुई थी। वो बोले, इस बारे में तुम्हें सरदार ही तफसील से बताएगा। वो कुछ बताने पर आमादा नहीं थे। उनका दुख भरा लहजा मेरे दिल दहलाए हुए था। मैंने कहा, सर कुछ तो बताएं, वो ठीक तो है ना? क्या वो भी हादसे के वक्त सरदार के साथ थी? मेरा जहन माऊफ होता जा रहा था। क्या सरदार की तरह वो भी जख्मी थी? अगर ऐसा था तो मुझे घर वालों ने क्यों नहीं बताया था? उन्हें तो लाजिमन ये खबर होना चाहिए थी। जब मुमकिन था कि जिस वक्त मैंने घर फोन किया था उस वक्त तक सरदार वगैरह का हादसा न हुआ हो। वो नपे तुले अल्फाज में बोला, ज़ीशान, बहुत सारे हादसों को, अपने प्यारों के बिछड़ने को और उनकी माजूरी वगैरह को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं नहीं जानता कि पलवशा के साथ क्या हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ। ये सरदार को मालूम है, वही तुम्हें तफसील से बता सकता है। सच कहूँ तो मैं बस एक बार ही सरसरी अंदाज में सरदार से मिल पाया हूँ, और तुम्हारी बीवी चूंकि कोई सरकारी आदमी नहीं है, इसलिए न मैंने सरदार से उसके मुताल्लिक
मुताल्लिक कुछ पूछा और ना उसने कुछ बताने की जहमत की। मैंने कहा सर झूठ बोलकर मुझे बहलाने की कोशिश न करें। वो बोले मूव ऑर्डर बनने तक अपनी वर्दी वगैरह उतार लो। उसने जेब से कार की चाबी निकाल कर मेरी तरफ फेंक दी। मैं जिद होकर बोला आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि असल बात क्या है। उसने कुर्सी घुमाकर अपना रुख दीवार की जानिब मोड़ लिया। बोला अगर मुझे मालूम होता तो जरूर बताता। एक लम्हा सोचने के बाद मैं उनके दफ्तर से निकल गया। उनके घर पहुंचकर मैंने जल्दी जल्दी वर्दी उतार कर कपड़े पहने और फिर अपना सामान समेट कर वहां से निकल आया। वापसी पर मेरा मूव ऑर्डर तैयार हो चुका था। मूव ऑर्डर मुझे पकड़ाते हुए औरंगजेब साहब कहने लगे कार की चाबी अपने पास रखो, बाद में वापस कर देना, मैं फिलहाल सरकारी गाड़ी पर गुजारा कर लूंगा। शुक्रिया वगैरह अदा करने का तकल्लुफ किए बगैर मैं उनसे मुसाफा करके कार की जानिब बढ़ गया। मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठते ही वो झुककर नसीहत करता हुआ बोला एहतियात से जाना, तेज रफ्तारी से माजी में हुआ काम तो तब्दील नहीं हो सकेगा, अलबत्ता तुम खुद माजी बन जाओगे। जी सर कहते हुए मैंने कार मोड़ ली। मोबाइल फोन की बैटरी बंद पड़े पड़े खत्म हो चुकी थी। सबसे पहले मैंने एटीएम से जरूरत के मुताबिक रकम निकाली और फिर एक नया मोबाइल फोन खरीद कर अपना सिम कार्ड उसमें मुंतकिल कर दिया। एक इजी लोड की दुकान से सिम कार्ड रिचार्ज करके मैंने फौरन सरदार को कॉल की। आगे से आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है कि बेहुदा खबर सुनकर मैं अब्बू जान का नंबर मिलाने लगा। चूंकि इस बार मैं जाती नंबर से कॉल कर रहा था तभी उन्होंने मेरा नाम पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। घंटी वसूल करते ही अब्बू जान की आवाज आई अस्सलाम वालेकुम जीशान बेटा। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम अब्बू जान कैसे हैं आप। वो बोले बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बाकी तमाम भी खैरियत से हैं, बाकी तुम दोनों की कमी महसूस हो रही है। उनकी बात सुनकर मेरा सांस रुकने लगा। आखिर कोई तो बात थी कि सरदार ने घर में पलवशा के मुताल्लिक कुछ भी नहीं बताया था। इसी तरह औरंगजेब साहब भी कुछ बताने पर राजी नहीं थे या शायद सचमुच उन्हें कुछ मालूम नहीं था। मुझे खामोश पाकर अब्बू जान मुस्तफसिर हुए चुप क्यों हो बेटा। मैंने कहा बस ये इतला दे रहा था कि कल तक इंशाल्लाह मैं घर पहुंच जाऊंगा, बाकी गपशप मिलने पर होगी। उन्होंने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा पलवशा बेटी तुम्हारे साथ है। मैंने कहा घर आकर बात करते हैं अब्बू, इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ। उस वक्त मैं हाँ ना की हालत में नहीं था। उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया ठीक है बेटा अपना ख्याल रखना। मोबाइल फोन बंद करके मैंने साथ वाली सीट पर फेंका और खुद को तसल्ली देने के लिए कुछ बेहतर सोचने की कोशिश करने लगा जो उस वक्त मुमकिन नहीं लग रहा था। हर सोच मेरे दिल को बिठाई जा रही थी। क्या मुझे माजूर पलवशा मंजूर थी? मैंने दिल से पूछा जिसका जवाब निहायत वाज़े मिला दिलो जान से मंजूर है, बस वो जिंदा हो, मैं सारी जिंदगी उसकी खिदमत करूंगा। अचानक ही मेरे दिमाग में कमांडर अब्दुल हक के जुमानी गुफ्तगू गूंजने लगी। उसने सरसरी अंदाज में पलवशा के लिए दुआ की थी और डेरा इस्माइल खान में मुझसे अलविदा होते वक्त उसने मुझसे माफी भी मांगी थी। रस्मी माजरत और किसी गलती पर माजरत चाहने में जमीन आसमान का फर्क होता है और उस वक्त उसका अंदाज रस्मी माजरत वाला नहीं था। इसका साफ मतलब यही था कि उसे पलवशा के साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में मालूम था, लेकिन उसने जानबूझकर मुझे लाइल्म रखा और यही वजह थी कि उसने मेरी वापसी पर जोर दिया था। यह भी मुमकिन था कि उसे इस बारे निक स्टुअर्ट की मौत से पहले ही पता चल गया हो और मुझे ज़हनी इंतशार से बचाने के लिए उसने ये खबर अपने तक महदूद रखी हो और बाद में शर्मिंदगी की वजह से इजहार न कर सका हो। इन तमाम उलझनों से मुझे सरदार खान ही निकाल सकता था। मैं एक बार सरदार के घर जा चुका था और उस वक्त जो मेरी दिमागी हालत थी उसके बाद औरंगजेब साहब की नसीहत पर अमल करना एक मजाक ही था। रावलपिंडी से सरदार के गांव तक 2.5-3 घंटों में पहुंच गया। उसके घर के सामने कार रोक कर मैं नीचे उतरा। दोपहर के 6 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक देते ही एक छोटा सा लड़का दरवाजे पर आया। मैंने पूछा सरदार खान घर पर हैं? उसने इस बात में सर हिलाया हाँ मामू जान घर पर ही है। उसके साथ ही उसने अंदर की तरफ रुख मोड़कर हाँक लगाई मामू जान आपका मेहमान है। दरवाजे की तरफ खटपट की आवाज आई जैसे कोई बैसाखियों पर चल रहा हो। मेरा दिल जैसे डूबने लग गया था। छोटे बच्चे ने दरवाजे का एक किवाड़ खोल लिया था और फिर सरदार खान मेरे सामने था। मुझे देखते ही वो सुन हो गया। कोई लफ्ज मुंह से निकाले बगैर हम एक दूसरे को घूरते रहे। वो पहले से काफी कमजोर हो गया था। दाईं टांग पर घुटने से नीचे प्लस्तर चढ़ा हुआ था, बाईं टांग अलबत्ता महफूज थी। उसके चेहरे पर अच्छी खासी दाढ़ी भी नजर आ रही थी। वो बोला मोहसिन बेटा बैठक का दरवाजा खोलो। अपने भांजे को कहकर वो मेरे करीब हुआ और फिर वो मेरी बाहों में था। चंद लम्हों बाद हम बैठक में आमने सामने बैठे हुए थे। मैं उससे कोई सवाल पूछने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। वो भी खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर इसी खामोशी में गुजर कर गुफ्तगू की इब्तिदा सरदार ने की थी। बोला ली जोना की कॉल आई थी, वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, शायद महीने डेढ़ तक यहाँ पहुँच जाए। ये खुशी की खबर सुनाते हुए भी वो मुझे लग रहा था कि जैसे रो रहा हो। मैं खामोश बैठा रहा। वो दोबारा बोला उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और अब पाकिस्तान आने के लिए कागजी कार्रवाई कर रही है।
उसकी ये बातें एक ऐसी ही कोशिश लग रही थीं जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद करके जान बचाने की कोशिश करता है। उसी वक्त उसका कमसिन भांजा ट्रे में शरबत का जग और 2 खाली ग्लास रखे अंदर दाखिल हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने ट्रे उठाई हुई थी। ट्रे मेज पर रखकर वो बाहर निकल गया था। मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही थी, मगर मैंने जग को हाथ नहीं लगाया था। मेरे मुंह से फंसी फंसी आवाज निकली, क्या हुआ था? अभी तक मुझे ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी कि पलवशा कहाँ है और किस हाल में है। मैं कुछ देर मजीद खुद को खुशफहमी में मुब्तला रखना चाहता था। मेरी बात सुनकर सरदार किसी गहरी सोच में खो गया। मेरी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी और दिल से दुआएं निकल रही थी कि सरदार के मुंह से कोई तसल्ली आमेज बात निकले। वो कह दे कि बस यार, बड़ी मुश्किल से हम दोनों की जान बची है या हम मरते मरते बचे हैं। इस तरह की कोई बात सुनने के लिए मेरा पूरा वजूद हमतन गोश था। सरदार की खामोशी तूल पकड़ने लगी। मैंने भी उसे बोलने पर नहीं उकसाया था, बस इंतजार की अजियत को बर्दाश्त करता रहा। वो बोला, वो बहुत पुरअज़्म थी। उसे मुकम्मल यकीन था कि वो अपने राजू की बेगुनाही के सबूत जरूर हासिल कर लेगी। कहती थी, सरदार भाई, जान दे दूंगी मगर सबूत हासिल किए बगैर नहीं लौटूंगी। नसरुल्लाह खान के घर से हमें तुम्हारे रखवाए हुए हथियार मिल गए थे। कमांडर नसरुल्लाह ने अफगानिस्तान के रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई कर दी थी। अंगूर अड्डे से हम सरहद तक पहुंचे, मगर फिर उसका इरादा तब्दील हो गया। कहने लगी कि अफगानिस्तान जाकर टामक टोइयां मारने से बेहतर है कि यहाँ से किसी दहशतगर्द के ग्रुप में शामिल होकर वहाँ पहुंचे। इस तरह एल्बर्ट ब्रूक वगैरह को ढूंढने में आसानी रहेगी। उसे सबसे ज्यादा उम्मीद जेनिफर के मिलने की थी। उसे यकीन था कि जेनी उसकी मदद जरूर करती। सरहद के करीब जाकर हम वापस पलट आए थे। अपनी शक्ल छुपाने के लिए उसने हल्की हल्की मूछें और दाढ़ी चेहरे पर चिपका कर सर पर पगड़ी लपेट रखी थी। मैंने बाल कटवाने का मशवरा दिया तो कहने लगी, क्यों अपने दोस्त से पिटवाना चाहते हो? राजू ने मना कर दिया है और आप जानते हैं ना कि उनकी बात को टालना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरा चेहरा चूंकि दहशतगर्दों के लिए नया था, इसलिए मैंने हुलिया तब्दील करने की कोशिश नहीं की थी। उसका मंसूबा शुमाली वजीरिस्तान में दीगान के मलिक गुलबदीन के पास जाकर काम हासिल करने का था, क्योंकि उसे मालूम था कि मलिक गुलबदीन भी अमरीकियों का खास बंदा है। उसने मामू के घर जाकर अपने दूध शरीक भाई के बारे में मालूमात हासिल की, क्योंकि उसी के जरिए हम दहशतगर्दों में जगह बना सकते थे। मालूम हुआ कि वो एक ही दिन पहले तोरे खार रवाना हुआ है। स्नाइपर राइफल उसके मामू के घर छोड़कर हमने भी वैगन में बैठकर तोरे खार का रुख किया। वो राइफल हम दहशतगर्दों में जगह बनाने के बाद वहां से बासानी ले जा सकते थे। तोरे खार का मलिक फिरोज अब सनोबर खान के बाद दहशतगर्दों का करता धरता है, लेकिन जनूबी वजीरिस्तान में पलवशा और आपने बहुत काम किया था, इसलिए हुलिया तब्दील करने के बावजूद वो मलिक फिरोज के पास काम हासिल नहीं करना चाहती थी। अलबत्ता उसकी बैठक में एक बार जाकर अपने भाई का पता मालूम करना इतना मुश्किल नहीं था। हम दोनों दोपहर के वक्त तोरे खार पहुंचे थे, लेकिन उसकी बैठक में घुसते ही अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ गया था। इसे एक अनोखा इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि तोरे खार के सरदार फिरोज खान के हमरा राजपाल बैठा कह लगा रहा था। वही हिंदू राजपाल जिसने अपने साथ अमेरिका में स्नाइपर कोर्स किया था। जब तक मैं अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता, उसने मुझे पहचान लिया था। पहचानते साथ ही उसने फिरोज खान से पूछा कि पाकिस्तान आर्मी का जवान उसकी बैठक में क्या करने आया है। उसकी बात सुनते ही फिरोज खान चौंक कर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और तब तक मैं एक नतीजे पर पहुंच गया था। वहाँ गिरफ्तारी देने का मतलब खुद को ज़िबाह करवाना होता। पलवशा को भी सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो गया था। मैंने फौरन कंधे से लटकी क्लैशनकोफ उतार कर सेफ्टी लीवर ब्रस्ट पर लगाते हुए ट्रिगर दबा दिया। मेरा निशाना राजपाल ही था। मरने से पहले कम से कम एक दुश्मन से तो जान छूट जाती। राजपाल छाती में गोली खाकर तड़पने लग गया था। फिरोज खान के आदमी एक लम्हे के लिए हक्का बक्का रह गए थे। उस वक्त पलवशा ने मुझे बाहर की तरफ खींचा और हम भागकर बैठक से बाहर निकल आए। पैदल भागकर जान बचाना मुमकिन नहीं था और खुशकिस्मती से वहाँ 3-4 गाड़ियां खड़ी थी। पलवशा ने फौरन एक डबल कैबिन का शीशा तोड़ा और अंदर घुसकर इग्निशन की तार तोड़कर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस दौरान मैंने बैठक के दरवाजे से बरामद होने वाले 2-3 दहशतगर्दों को अपना शिकार बना लिया था। बाकी दरवाजे की आड़ ही से फायरिंग का जवाब देने लगे। पलवशा ने डबल कैबिन स्टार्ट करते ही मेरे लिए अगली नशिस्त का दरवाजा खोला और मेरे बैठते ही गाड़ी भगा दी। उस डबल कैबिन के साथ खड़ी हुई 2 गाड़ियों के टायर फाड़कर मैंने वक्ती तौर पर नाकारा कर दिया था, मगर उनके पास बैठक में और गाड़ियां मौजूद थीं। दुश्मन की 3 गाड़ियां हमारे ताक़ुब में थीं। पलवशा बड़ी महारत से गाड़ी भगाए जा रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया था कि हम किसी काबिल खान महसूद के पास वशलाम जा रहे हैं। तीनों गाड़ियां पूरी कोशिश के बावजूद हमारे करीब नहीं पहुंची थी। वो बिला शक व शुबा एक बेहतरीन ड्राइवर थी, लेकिन फिर हमारी बदकिस्मती का ज़हूर हुआ। उस वक्त हम वशलाम के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और बिल्कुल ठीक जा रहे थे कि अचानक सड़क पर एक छोटा बच्चा अचानक ही हमारी गाड़ी के सामने आया।
पलवशा ने स्टीयरिंग को बाएं जानिब काटा। गाड़ी कच्ची सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर से टकराई और लुढ़कियां खाते हुए नशेब में गिरने लगी। मेरे दिमाग में जो आखिरी एहसास जिंदा है वो यही है कि मैंने दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगाई थी। उसके बाद मेरी आंख अस्पताल में खुली थी। मेरे सर पर गहरी चोट लगी थी और मुझे करीबन महीने बाद होश आया था। मैं पेशावर के एक अच्छे अस्पताल में दाखिल था। मुझे वहां लेकर आने वाला काबिल खान महसूद था। वो पलवशा का मुंह बोला भाई था। उसी की जबानी बाकी वाकयात मुझे मालूम हुए। हादसा होते ही वहां लोग इकट्ठे हो गए थे। दुश्मन शायद हमारी मौत की तसल्ली करके ही वहां से हटते, मगर मेरी खुशकिस्मती कह लो कि वशलाम के लोगों ने पलवशा को फौरन ही पहचान लिया। वो हादसे के बाद भी होश में थी। वो सबसे पहले हमें वाना लेकर गए, मगर वहाँ कोई खास अस्पताल तो मौजूद नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस करवा कर बन्नू और फिर वहाँ से साफ जवाब मिलने पर पेशावर ले आए। वो हादसे के हफ्ता बाद तक जिंदा रही और फिर सरदार ने आंखों में आई नमी साफ की और गुलूगीर लहजे में बोला। उसने काबिल खान को बता दिया था कि वो अपनी बहन सपू गुमाए के पहलू में दफन होना चाहती है। होश में आते ही मुझे काबिल खान ने सारी बात तफसील से बतलाई। उसने शनाख्ती कार्ड के जरिए मेरे घर वालों का पता मालूम करने की कोशिश की थी, मगर मेरी जेब में तो नकली शनाख्ती कार्ड था, इसलिए उसे कामयाबी नहीं हुई थी। पलवशा भी हादसे के बाद थोड़ी देर तो होश में थी, लेकिन उसके बाद वो मुसलसल बेहोश रही थी। बस हमें छोड़ने के फैसले पर अमल करते वक्त उसे चंद लम्हों के लिए होश आया और काबिल खान के सामने अपने दफन की वसीयत करके वो चली गई, कभी ना आने के लिए। मैंने होश में आते ही औरंगजेब साहब से बात की। वो मेरे वापस न आने की वजह से परेशान थे। उसके हुक्म पर मुझे फौरन ही CMH पेशावर में मुंतकिल कर दिया गया। मैंने काबिल खान का शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत किया। मेरी टांग पर तो सिविल अस्पताल वालों ने प्लास्टर चढ़ा दिया था। CMH वालों ने मुझे चंद दिन रख कर सिक लीव देकर छुट्टी भेज दिया और तब से मैं यही हूँ। सरदार की बात खत्म हो चुकी थी। मैं कहीं दूर खला में देख रहा था। न मेरी आंखों में आंसू थे और न दिमाग किसी सोच पर मुर्तकिज। जाने मैं क्या सोच रहा था। राजे, सरदार ने मुझे आवाज दी। मैंने गायब दिमागी से उसके चेहरे पर निगाह डाली, मगर मुंह से कुछ न बोला। वो बोला, राजे वो चली गई है यार, मेरी चिनारे की तरह तुम्हारी पलवशा भी चली गई। पता नहीं ये औरतें ऐसा क्यों करती हैं। जब इन्हें पता चल जाता है कि इनके बगैर शौहर का जिंदा रहना मुश्किल है, तो अपनी अहमियत जताने के लिए ये मरने से भी दरेज नहीं करती। मैं कुछ न बोला। सरदार बताने लगा, उसने अपनी मौत की खबर माँ और आपके घर वालों तक पहुंचाने से मना कर दिया था। उसने वाज़ेह अंदाज में बता दिया था कि सबसे पहले उसकी मौत की बाबत तुम्हें इत्तला दी जाए और फिर बाकी तमाम को आप खुद ही बता देंगे। जब काबिल खान महसूद ने तुम्हारा पता कराया तो उसे मालूम हुआ कि तुम 2-3 दिन पहले ही अफगानिस्तान चले गए हो। वो तुम्हारे घर जाकर पलवशा की माँ को मिला था। बहाना उसने ये बनाया था कि पलवशा उसके पास थोड़ा सामान छोड़कर आगे अफगानिस्तान चली गई है। तभी पलवशा की माँ ने उसे तुम्हारे अफगानिस्तान जाने के बारे में बता दिया। उसके बाद उसे तो हिम्मत न हुई तुम्हारे घर वालों को इत्तला देने की, और ना मुझे हिम्मत हुई, क्योंकि जब मुझे होश आया तो वो कब की दफन हो चुकी थी। मेरे दिमाग में साएं साएं हो रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया था। मेरे बदतरीन अंदेशे हकीकत का रूप धार चुके थे। एक दफा पहले भी वो मुझे छोड़ चुकी थी और अब दोबारा उसने वही किया था। पहले भी वो अपनी माँ और भाई की वजह से मजबूर थी और अब उसके पास मोहलत खत्म हो चुकी थी। मुझे मुसलसल चुप देखकर सरदार खान ने कहा, यार कुछ तो बोलो, खामोश क्यों हो? लेकिन मेरे पास अल्फाज खत्म हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि सरदार को क्या कहूँ, गिला करूँ या तसल्ली दूं, कोसूं या नजरअंदाज करूं। उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन इंसान को दिल की भड़ास निकालने के लिए कोई हदफ तो चाहिए होता है। अपने नुकसान का जिम्मेदार किसी को तो ठहराना होता है। मौत एक अटल हकीकत है, लेकिन दिलो दिमाग तो मौत से बचने के कई बहाने तराशते हैं। अगर यूं ना किया होता तो यूं हो जाता, और वहां ना गया होता तो वैसा होता, ये कर लिया होता तो जान बच सकती थी, वगैरह वगैरह। हालांकि ये सब बस पछतावे को बढ़ाने वाली बातें हैं। सरदार बोला, मैं बेकसूर हूँ राजा, मैं बेबस हो गया था। मैं उसे कभी भी मरने न देता, दुनिया की हर ताकत से टकरा जाता, मगर अफसोस इजराइल अलैहिस्सलाम से तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं चुपचाप उठकर बैठक के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सरदार ने मुझे पुकार कर रोकने की कोशिश की, मगर मैं दरवाजे से बाहर निकलकर कार में बैठ गया। उसके बैठक के दरवाजे तक पहुंचने से पहले मैं कार आगे बढ़ा चुका था, और फिर मुझे मालूम न हुआ कि कैसे मैं बगैर किसी हादसे के घर तक पहुंचा। मुंतशिर सोचें, बिखरे ख्यालात, अजियत भरे एहसासात, आंखों से बहता पानी और दर्द गम से बोझल दिल के साथ ड्राइविंग करना इतना भी आसान नहीं था। घर का दरवाजा बंद था। दस्तक के जवाब में अब्बू जान ने दरवाजा खोला था और उनकी शफकत भरी आगोश में सर छुपाते ही मेरे बंद होंठों से दर्द भरी सिसकियां बरामद हुई। अब्बू जान घबरा गए थे। क्या हुआ बेटा? अब्बू जान की आवाज में छुपे अंदेशे गैर मुतवक्के नहीं थे। मैंने कहा, वो चली गई है अब्बू जान, वो मुझे छोड़कर चली गई है। उसके साथ निभाने के सारे वादे और कस्में झूठे थे। तमाम औरतें एक जैसी होती हैं। अब्बू जान ने मुझे जोर से अपने साथ भींचते हुए पूछा, कहाँ चली गई है बेटा, किसके साथ गई है? मैंने अजियत भरे लहजे में कहा, अकेली गई है अब्बू जान।
ऐसी जगह जहाँ से कोई नहीं लौटता। हम दरवाजे के सामने ही खड़े थे। मौसम ऐसा था कि घर वालों ने चारपाइयां सहन में बिछाई हुई थी। अब्बू जान मुझे साथ लिपटाए हुए चारपाइयों की तरफ बढ़ गए। अगले 2-3 लम्हों में पलवशा की माँ और फुप्पो जान को पलवशा की मौत के बारे में मालूम हो चुका था। फुप्पो जान धाड़े मारती हुई मुझसे आन लिपटी थी। आन की आन में तमाम माहौल मातमजदा हो गया था। सिर्फ पलवशा का मासूम भाई अदील बेखबर पड़ा सो रहा था। उसके अलावा रात भर कोई भी नहीं सोया था। मैं घुटनों पर सर टेके बंद आंखों से उसके साथ गुजरे लम्हात को फिल्म की तरह देखता रहा। कोई पल भी तो मुझे नहीं भूला था जिस वक्त वो पहली बार मेरे सामने आई और जब मैंने आखिरी बार उसे गले से लगाते हुए उसकी कुशादा जबीन पर आखिरी बार मोहरे मोहब्बत सब्त की। इन लम्हात के दरमियान में मौजूद हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी मेरी यादाश्त में वो महफूज रही। उसके प्यारे हाथों ने मेरे जिस्म को जिस जिस जगह पर छुआ था उस लम्स की गर्मी अब तक ताज़ा थी। उसके सांसों की महकती खुशबू उस वक्त भी मेरी कुव्वत शामा महसूस कर सकती थी। उसकी मधुर आवाज मेरी समात में जिंदा थी। उसका चांद सा रोशन मुखड़ा मेरी बसारतों के सामने था। उसकी शोखियां, शरारतें, मोहब्बत भरे गिले शिकवे, नाज़ो अदा कुछ भी तो नहीं भूला था। और भूल भी कैसे सकता था? कोई सांस लेना भी भूल सकता है। सुबह की अजान सुनकर अब्बू जान ने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए कहा, बेटा नमाज पढ़ लो। और मैं खामोशी से गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। वुजू करके हम मस्जिद की तरफ बढ़ गए। वापसी पर अदील जाग गया था। मुझे देखते ही वो खुशी से चहकता हुआ मेरे साथ लिपट गया। वो पलवशा को बहुत प्यारा था। मैं बेसाख्ता उसे चूमने लगा। उस मासूम को कुछ पता नहीं था कि घर पर क्या कयामत बीत चुकी है। उसने छूटते ही अपनी बाजी का पूछा। मैं उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए पूछने लगा, मेरा बेटा स्कूल जाता है या नहीं? वो बोला, हाँ लाला जान, स्कूल तो जाता हूँ और अब मुझे पंजाबी में बात करना भी आ गई है। उसने फखरिया लहजे में बोला। मैंने पूछा, तो किस क्लास में हो? मैं उसका जहन बटाने के लिए मुसलसल सवाल करने लगा था ताकि उसे सवाल करने का मौका न मिले। इसी दौरान फुप्पो जान उसके लिए नाश्ता ले आई थी। पलवशा की माँ घुटनों में सर दिए गुमसुम बैठी थी। पलवशा उसकी बेटी नहीं, बेटा थी। वो बहुत हिम्मत, जुर्रत और हौसले वाली थी। उसने हमेशा माँ और छोटे भाई की हिफाजत की और अब वो नहीं रही थी। यकीनन मुस्तकबिल के अंदेशे भी उसके जहन में मौजूद होना थे कि पलवशा के जाने के बाद उसका हमारे घर में रहने का कोई जवाज नहीं बनता था। ये और बात कि मैं उन्हें किसी सूरत घर से दूर जाने की इजाजत न देता। पलवशा अपने छोटे भाई को आला तालीम दिलाने की ख्वाहिशमंद थी और उसकी ये ख्वाहिश मैं हर सूरत में पूरी करना चाहता था। फुप्पो जान से नाश्ता लेकर मैं अदील को नाश्ता करवाने लगा। उसने एक बार फिर अपनी बाजी के बारे में पूछा जिसे मैं आए बाएं में टाल गया। उसे तैयार करवा कर मैंने स्कूल भेज दिया। दोपहर तक पलवशा की मौत की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। मर्द बैठक में आकर ताज़ियत करने लगे जबकि औरतों की आमद से हमारा सहन भर गया था। मैं कमरे में घुसा रहा। ये वही कमरा था जहां मैंने उसे आखिरी बार गले लगाया था। उस वक्त वो दुल्हन के रूप में कयामत ढा रही थी। उसकी रेशमी कलाइयों में कंगन पहनाकर मैंने उसे तसल्ली दी थी। वो मेरे साथ चलने पर बज़द थी। मैंने हसरत भरे लहजे में सोचा, मैं उसे साथ ले गया होता तो शायद वो बच जाती। कमरे में अभी तक शादी की सजावट मौजूद थी। मेरे जाने के बाद पलवशा ने घर में चंद दिन से ज्यादा नहीं गुजारे थे। उसके बावजूद कमरे में उसकी खुशबू बाकी थी। दोपहर को वैस अपनी बीवी इरम के साथ मेरे कमरे में आ गया। मियाँ बीवी ने दुखी दिल के साथ ताज़ियत की, मुझे हौसला दिया और थोड़ी देर बैठकर हमदर्दी भरे कलिमात से मुझे तसल्ली देकर रुखसत हो गए। गम जितना भी बड़ा हो सदा नहीं रहता। दुख कितना ही ज्यादा हो, वक्त की गर्द उसे अपनी लपेट में लेकर भूला बिसरा कर देती है। अजियत की इंतहा अगर वक्त बीतने के साथ राहत में नहीं भी ढलती तब भी अजियत में पहले जितना दमखम बाकी नहीं रहता। बिछड़ने वाला जितना भी प्यारा हो उसके दूर जाने की हकीकत को तस्लीम कर लेना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को भी पलवशा की जुदाई का दुख झेलने की आदत हो गई थी। मेरी छुट्टी पूरी हो गई थी मगर मैं वापस जाने पर तैयार नहीं था। राव तसव्वुर साहब ने कमांडिंग ऑफिसर से बात करके मुझे यूनिट की तरफ से 2 माह की मजीद छुट्टी दिलवा दी थी। दोस्त अहबाब मुझे मिलने और तसल्ली देने आए थे। औरंगजेब साहब ने भी आकर ताज़ियत की थी। वापस जाते हुए मैंने कार की चाबी शुक्रिया के साथ उनके हवाले कर दी। एक दिन पलवशा की माँ गुलनाज मुझसे वापस जाने की इजाजत मांग रही थी। बोली, बेटा मैं चाहती हूँ अपने भाई के पास अंगूर अड्डे चली जाऊँ। मैंने पूछा, यहाँ कोई तकलीफ है माँ जी? वो दुखी दिल से बोली, तकलीफ तो नहीं है बेटा, मगर अब हम किस रिश्ते से यहाँ हैं? मैं जख्मी लहजे में बोला, तो क्या आपका ख्याल है उस बेवफा के जाने से हमारे सारे रिश्ते टूट गए हैं? वो बोली, फिर भी बेटा। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा। मैंने फौरन कता कलामी करते हुए कहा, माँ जी आज के बाद अगर कुछ ऐसा कहा तो मैं खफा हो जाऊंगा। और आप यकीनन नहीं जानती कि हम दोनों बहुत पहले शादी कर चुके थे। बाद वाली शादी तो बस आप अब्बू जान और फुप्पो जान की खातिर कर रहे थे। और पता है उसने अपने इलाके के रिवाज के मुताबिक कितनी रकम का मुतालबा किया था? पलवशा की बात जहन में आते ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट खिलने लगी। मैंने कहा, पूरे 50 लाख, और वो रकम मेरे अकाउंट में जमा है। उसकी सारी रकम आपकी और अदील की ही तो है।
اور یہ رقم آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ وہ عدیل کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں عدیل کو واپس انگور اڈے بھیج کر اس کی روح کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں؟ وہ بولی، بیٹا میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر میں بولا، آپ پلوشا کی ماں ہیں اور اس کی ہر چیز سے مجھے اتنی ہی محبت ہے جتنی اس سے تھی۔ آپ میری بھی ماں ہیں، کبھی دل میں ایسی ویسی بات کو جگہ نہ دینا۔ اس گھر پر آپ کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا یا ابو کا۔ یہ پلوشا کا گھر ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے دست شفقت میرے سر پر رکھ دیا، جیتے رہو بیٹا۔ یہ مقدس ہاتھ جانے کتنی بار انہوں نے میری پلوشا کے سر پر بھی رکھا ہوگا۔ سکون اور اطمینان میرے رگو پے میں اتر گیا۔ میں ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، یہ شفقت بھرا ہاتھ کبھی بھی میرے سر سے نہ ہٹانا ماں جی۔ فوجی کی عام دنوں کی چھٹی پر لگا کر گزرتی ہے، مگر اب پلوشا کی جدائی میں میرا ہر دن صدیوں کی مسافت پر مشتمل ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود چھٹی کے 3 ماہ بیت چکے تھے۔ میں واپس یونٹ پہنچا۔ دوست احباب ایک بار پھر تسلی دینے اور حوصلہ بڑھانے میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ سردار بھی یونٹ واپس پہنچ چکا تھا۔ ایک بار وہ میرے گھر بھی آ چکا تھا، لیکن نامعلوم کیوں میں نے اس سے بات چیت کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ کئی بار اپنے ناکردہ جرم کی معافی مانگ چکا تھا، مگر میں خاموش رہ کر اس کی ہر کوشش کو نظر انداز کر دیتا۔ اس کی ٹانگ کا پلستر اتر چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکا تھا۔ یونٹ واپسی کے 2-3 دنوں تک مجھے کسی نے نہیں چھیڑا۔ ایک رات مجھے حکم ملا کہ اگلے دن میری کمانڈنگ آفیسر کے سامنے پیشی ہے۔ صبح 9 بجے میں کمانڈنگ آفیسر کے دفتر میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے سب سے پہلے پلوشا کی موت کی تعزیت کی اور اس کے بعد بتایا کہ چونکہ انہیں ہائی کمانڈ کی طرف سے سختی سے مجھے سزا سنانے کا حکم ملا تھا، اس وجہ سے انہوں نے میری حوالداری کا رینک توڑ کر مجھے دوبارہ سپاہی بنا دیا تھا۔ مجھے نہ تو رینک کا شوق تھا اور نہ میں مزید نوکری کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، سر میں ڈسچارج ہونا چاہتا ہوں کیونکہ اب میں خود کو مزید پاک آرمی کی خدمت کے لیے قابل نہیں سمجھتا۔ وہ بولے، شاید تم رینک ٹوٹنے کی وجہ سے دل گرفتہ ہو، اگر ایسا ہے تو فکر نہ کرو، 1 سال کے اندر میں تمہیں دوبارہ حوالدار بنوا دوں گا، لیکن فی الحال تمہارا رینک توڑنا ضروری تھا کیونکہ نادانستگی میں ہی صحیح تم آرمی کا قانون توڑنے کے مجرم ہو۔ میں نے کہا، نہ تو مجھے اپنے جرم سے انکار ہے اور نہ مجھے رینک کا ہی شوق ہے، بس میں خود کو نوکری کرنے کے قابل نہیں سمجھتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے باعزت ڈسچارج کر دیا جائے۔ میں نوکری چھوڑنے پر مصر تھا۔ وہ بولے، جاؤ فی الحال آرام کرو اور جتنی چھٹی کی ضرورت ہو لے لو، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے میری خواہش پر ذرا بھی دلچسپی کا اظہار کیے بغیر مجھے جانے کا اشارہ کیا اور میں سیلوٹ کر کے ان کے دفتر سے نکل آیا۔ گھنٹے ڈیڑھ کے بعد ہی استاد راؤ تصور صاحب، استاد فیاض، استاد بدر الدین آوان، استاد اشفاق تنولی اور میرے دوسرے استادوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ تمام نے کھل کر میرے فیصلے کو رد کیا اور بجائے منت کے یہ حکم دیا کہ اگر میں نے ڈسچارج ہونے کی باقاعدہ درخواست دی تو وہ درخواست فوج سے ڈسچارج ہونے کی نہیں، ان سے تعلق توڑنے کی درخواست ہوگی۔ اپنے ان استادوں سے میرا تعلق ایسا نہیں تھا کہ میں ان کا حکم ٹال سکتا، انہیں مجھ پر کوئی مان تھا تو انہوں نے منت کی بجائے دھوس دھمکی سے کام لیا۔ میں نے ان کے حکم کے آگے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ شام کو حوالدار میجر نے مہینہ چھٹی میرے حوالے کر دی، جو میں نے شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا دی۔ گھر جا کر میں پلوشا کی یادوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہاں تمام دن اور رات کا بیشتر حصہ دوست احباب کی میت میں گزرتا، اس لیے دشمن جاں کی یادوں سے کچھ افاقہ ہوتا، ورنہ تو وہ ہر لمحہ میرے پاس ہی موجود رہتی۔ اسے ہمیشہ مجھ سے بچھڑنے کا خوف ستاتا رہتا۔ مجھ سے دور جانے کے خیال سے وہ اکثر رات کو اٹھ کر مجھ سے لپٹ جاتی، یوں گویا اسے میں نے ہی چھوڑ کر جانا ہے، وہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گی، اور جب وقت آیا تو خود ہی سارے وعدے اور قسموں کو پاؤں کی ٹھوکر میں اڑا کر اتنی دور چلی گئی جہاں تک میری سوچ کی رسائی بھی ممکن نہیں تھی۔ ایک بار اس نے میری گود میں سر رکھ کر ایک نظم گنگنائی، اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند رات کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا کہ وہ میرا دل تھا، اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو اور اس کی دیواریں جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے، اگر کبھی میری یاد آئے۔ گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں جنبشوں میں تمہیں ملوں گا، تم اوس قطروں کے آئینوں میں تلاش کرنا، گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا، اگر ہواؤں میں خوشبوؤں میں اوس قطروں کے آئینوں میں مجھے نہ پاؤ تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا، کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی راکھ دریا میں ڈال دینا، میں خاک ہو کر سمندروں میں سفر کروں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا، سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا، اگر کبھی میری یاد آئے۔
न जाने वो किस जजीरे पर रुक कर मुझे सदाएं दे रही थी कि उसकी सदाएं मेरी समातों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तरबियती मशकें फौज की रोजमर्रा है। जहन बटाने के लिए मैं भी तरबियती मशकों में हिस्सा लेने लगा। नए स्नाइपर को तरबियत देकर मैं गोया उस्ताद के दर्जे पर तरक्की पा गया था। मेरे अमली तजुर्बात ऐसे थे कि उस्ताद तसव्वुर भी मुझसे मशवरा लेकर मेरी इज्जत अफजाई करते। दिन भर की सख्त तरबियती मशकों के बाद रात को अच्छी खासी नींद आती। अलबत्ता कभी कभार पलवशा मेरे ख्वाबों को रौनक बख्शने आ जाती। एक रात वो मेरे ख्वाब में आई तो खफा थी। मैंने पूछा क्या हुआ चंदा। उसकी नाराजी भरी निगाहों की ताब लाना मेरे लिए नामुमकिन था। वो बोली आप मेरे सरदार भाई से क्यों खफा हैं? मैंने कहा तुम्हें नहीं मालूम। वो बोली इसमें उनका क्या कसूर है? मैंने कहा अगर उसने तुम्हें घर वापस भेज दिया होता और अकेला मेरी बेगुनाही के सबूत ढूंढने जाता तो कभी भी ये हादसा न पेश आता। उसने मुंह बनाया। आपके ख्याल में मैंने उनकी बात फौरन मान जानी थी? और ये आपको किसने कहा कि उन्होंने मुझे वापस भेजने की कोशिश नहीं की? मैंने कुछ कहना चाहा मगर वो बोली छोड़ें अगर मगर को और अभी अभी उठकर उनसे खफगी दूर करें। उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई थी। कमरे में चलने वाले पंखे और एयर कूलर अगस्त की गर्मी से लड़ने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थे। मैंने उठकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। सरदार की चारपाई मुझसे 3 चारपाइयों के फासले पर पड़ी थी। करवटों का तसलसल उसके जागने को जाहिर कर रहा था। हाथ वाला पंखा तकिए के नीचे से निकालकर मैं उसकी चारपाई की तरफ बढ़ गया। दीवार से टंगी घड़ी रात के 2 बजने का ऐलान कर रही थी। उसकी चारपाई के सामने रुकते हुए मैं धीमे लहजे में बोला अगर नींद नहीं आ रही तो बाहर चलते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो जाग ही रहा था। फौरन उठ बैठा। पाँव में चप्पल डालते हुए वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला अच्छा मशवरा है। हम दोनों लॉन में बेंच पर बैठ गए थे। सरदार मेरे माजी के रवैये का जिक्र किए बगैर यूं गपशप करने लगा जैसे हमारे दरमियान कुछ हुआ ही नहीं। बोला तुम्हारा भतीजा सुल्तान बहुत शरारती हो गया है। अब उसे नई माँ की जरूरत पहले से ज्यादा है। मैंने कहा उस दिन तुमने लीजोना का जिक्र किया था। उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा परसों आ रही है। मैं भी कल छुट्टी लेकर जा रहा हूँ। मैंने पूछा शादी के बारे में क्या सोचा है? वो हंसते हुए बोला 10 दिनों की छुट्टी जा रहा हूँ। कोशिश यही होगी कि कोई दिन जाया ना जाए। मैंने कहा क्यों, एयरपोर्ट पर निकाह खां को भी साथ लेकर जाओगे? वो बोला नहीं, वो घर में बैठकर हमारे आने का इंतजार करेंगे। मैंने कहा इसका मतलब मुझे भी अपनी छुट्टी का बता देना चाहिए। वो इत्मीनान से बोला मैं बता चुका हूँ। मैंने हैरानी से पूछा कब? वो बोला आज ही हवालदार मेजर को बताया है क्योंकि मैं जानता था कि लीजोना की आमद का सुनकर तुम जरूर मेरे साथ चलोगे। मैंने इस बात में सर हिलाया। सही कहा। हम घंटा डेढ़ वहीं बैठे गप्पे हाँकते रहे और फिर मच्छरों की मुसलसल यलगार से तंग आकर वो बैरक में घुस गया जबकि मैं वहीं बैठा रहा। सरदार खान एक मुखलिस दोस्त था। उसने मेरे पिछले दिनों के रवैये को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। बैठे बैठे अचानक मेरे दिमाग में जेनी का ख्याल उभरा। मैंने कलाई से बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुबह के 4 बज रहे थे। गोया उनके पास शाम के 6-7 बजे का वक्त होना चाहिए था क्योंकि न्यूयॉर्क का वक्त हमसे करीबन 9 घंटे पीछे है। मैंने आंखें बंद करके अपनी याददाश्त खंगाली। जरा सी कोशिश से उसका नंबर मुझे याद हो गया था। मोबाइल फोन निकालकर मैं उसका नंबर डायल करने लगा। 2-3 घंटियों के बाद कॉल वसूल कर ली गई। मैंने उसकी हैरानी भरी हेलो के जवाब में पूछा जेनी कैसी हो? उसने मुझे पहचानने में एक लम्हा भी न लगाया। जी शुक्र है तुम्हें मेरी याद आ गई। जाने कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें अपनी शादी पर बुलाना था मगर तुम्हारी कॉल ही ना आई। मजबूरन मुझे तुम्हारे बगैर ही शादी करना पड़ी। महीना हो गया है मेरी शादी को। वो पुरजोश लहजे में बोलती गई। मैंने उसके नाम को मजीद मुख्तसर करते हुए कहा मुबारक हो जी। वो बोली शुक्रिया जी। मैंने पूछा अच्छा कैसा है वो? बोली बहुत मोहब्बत करता है, इतना ख्याल रखता है कि बता नहीं सकती। इस वक्त भी बावर्ची खाने में घुसा रात का खाना बना रहा है। मैंने कहा इसलिए तो कहता था कि किसी हम मजहब और हम तहजीब से शादी कर लो, मजे करोगी। वो बोली जी मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती और इतना तो तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती थी और सच कहूँ तो मेरी दिली तमन्ना अब भी वही है। मैंने कहा अगर बावर्ची खाने में खाना बनाने वाले शौहर साहब ने तुम्हारी बेहुदा बात सुन ली तो देगचा तुम्हारे सर पर दे मारेगा। वो बोली उसे मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। वो तुम्हारी उस आफत की परकाला की तरह नहीं। उसने पलवशा का जिक्र करते हुए गोया मेरे दिल के जख्म को रेते। बोली वैसे कैसी है और क्या उसे मालूम है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया था। मुझे खामोश पाकर उसने बेचैनी से पूछा जी क्या हुआ, खैरियत तो है? न जाने कैसे उसे मेरी खामोशी से किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। बमुश्किल मुख्तसर सा फिक्रा मेरे हल्क से बरामद हुआ। जेनी वो नहीं रही। वो हैरानी से चीख पड़ी। क्या मतलब नहीं रही? मैंने कहा तुम्हें बताया था ना कि वो मेरी बेगुनाही के सबूतों के हुसूल के लिए मुझसे पहले निकली थी। बस इसी कोशिश में जान से हाथ धो बैठी। और जानती हो मरने से 2-3 दिन पहले वो तुम्हें तलाश करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे यकीन था कि तुम उसकी मदद जरूर करोगी। वो बोली मैं उसकी मदद जरूर करती जी। वो बहुत प्यारी थी। सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो इस काबिल थी कि उसे चाहा जाता। जेनी की आवाज में शामिल दुख मसनूई नहीं था। मैंने कहा अच्छा छोड़ो उसके जिक्र को, कोई और बात करो। वो खुलूस भरे लहजे में बोली जी अगर कहो तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ या तुम्हें अमरीका बुलवा लेती हूँ और यकीनन मैं अब भी अपने शौहर को तलाक दे सकती हूँ।
मैंने कहा, जेनी मैं जानता हूँ कि तुम मुझे दिल की गहराइयों से चाहती हो और इसमें भी कोई शक नहीं कि मुझे भी तुम उतनी ही प्यारी हो, लेकिन अपने ताल्लुक के बारे में तुम्हें पहले भी तफसील से बता चुका हूँ। तुम हमेशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त रहोगी, ऐसी दोस्त जिसे मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और हमेशा करूंगा। उसने अजीब से लहजे में पूछा, जी तुम उसके लिए बहुत ज्यादा रोते हो ना? मैंने फीकी मुस्कुराहट से कहा, नहीं बस कभी कभी। वो बोली, अच्छा याद आया, तुमने बेचारे निक स्टुअर्ट के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कहा, तुम तक ये बात पहुंच गई थी। वो बोली, जब उसे गोली लगने की बात मुझ तक पहुंची मैं समझ गई थी कि ये जी का काम है। बाद में लॉरा ब्राउन से भी मुलाकात हुई थी और उसने तस्दीक की कि निक स्टुअर्ट एसएस की गोली का निशाना बना है। वो तुमसे बहुत मुतासिर नजर आ रही थी। जब उसे मेरे और तुम्हारे ताल्लुक के बारे में मालूम हुआ तो काफी देर तुम्हारे बारे में गपशप करती रही। ये कहते हुए उसने हंसते हुए पूछा, वैसे उसे किस खुशी में जिंदा छोड़ दिया? मजबूरन मैंने उसे जिंदा छोड़ने की वजह बयान कर दी। बोली, बहरहाल वो किसी और खुशफहमी में थी। मैंने शरारती लहजे में पूछा, वैसे दिखने में कैसी है? वो फौरन बोली, मुझसे खूबसूरत है। मैं एतमाद से बोला, ये तो सरासर झूठ। उसने अजीब से लहजे में पूछा, क्यों, मुझसे कोई लड़की खूबसूरत नहीं हो सकती? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, क्या पलवशा भी नहीं? मैंने नाराज लहजे में उसे झिड़का, उसका जिक्र करना जरूरी था। वो फौरन बोली, माफी चाहती हूँ और लॉरा का नंबर मेरे पास मौजूद है। अगर बात आगे बढ़ाना हो तो यकीनन मज़ाहिया अंदाज अपनाकर वो पलवशा के दिल फिगार तस्करे का कफारा अदा करना चाह रही थी। मैं इत्मीनान से बोला, तुम्हारा फोन नंबर मेरे पास मौजूद है और मेरा ख्याल है उसके अलावा मुझे किसी के फोन नंबर की जरूरत नहीं। वो बोली, चलो अपना ख्याल रखना जी। मैंने कहा, हाँ तुम भी, अब नमाज का वक्त हो गया है। मेरा ये नंबर महफूज कर लेना और इस पर जब चाहो कॉल कर सकती हो। वो बोली, ठीक है जी, गुड बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और हो सके तो तुम भी शादी कर लो। यकीनन तुम्हें संभालने के लिए एक औरत की जरूरत है। मैंने कहा, इतने कीमती मशवरे पर शुक्रगुजार हूँ, और मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अजान काफी देर की हो चुकी थी। मैं उठकर मस्जिद की तरफ चला गया।